Hello friends and children, I am Sapna Rajput. As we discussed in our previous video that we are going to start our topic subject-verb agreement. But before doing that, we should quickly know something about grammatical entities like noun, pronoun, adjective, verb, preposition, conjunction, adverb, interjection. Because without knowing them, we cannot start our topic subject-verb agreement. In future videos, we will discuss this topic one by one in details. So let's start. Noun. Noun is a naming word. There are two types of noun, two concepts of noun actually. Traditional concept, modern concept. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में 5 तरह के नाउन होते थे: कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन. Whereas in modern concept there are only 2 types of noun, common noun and proper noun. अब चेंजेस कहाँ पर हुए हैं? ट्रेडिशनल के कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन मर्ज हो गए हैं मॉडर्न के कॉमन नाउन में. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन एक जनरल आइडेंटिटी देता है, जैसे कि सिटी, पेन, डॉग, कैट एक्सेट्रा. ये 2 तरह के होते हैं, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनका प्लूरल किया जा सके, मैन, कंट्री, पेन, टेबल एक्सेट्रा. अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनका प्लूरल नहीं किया जा सकता, मिल्क, पोइट्री, सीनरी, टी एंड कॉफी. अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर आइडेंटिटी देता है पर्सन को, थिंग को, या किसी प्लेस को. एग्जाम्पल लेते हैं, नेम ऑफ अ सिटी, दिल्ली. दिल्ली इज ए प्रॉपर नाउन क्योंकि इट इज अ पर्टिकुलर नाम ऑफ अ सिटी, whereas city is a common noun denoted for all the cities of the world, country, etc. Name of a person. Person is a common noun, but name of a person, let's say Sarah. Sarah is a proper noun. किसी पर्टिकुलर इंसान का पर्टिकुलर नाम है Sarah. Name of a thing. Parker pen, Reynolds pen, etc. कैसे? पेन एक कॉमन नाउन हो गया. हर पेन लिखने वाली चीज को जो इसमें इंक हो उसे हम पेन कहते हैं, तो वो कॉमन नाउन हो गया, एक जनरल आइडेंटिटी हो गई, ये पेन है. वेयरएज रेनॉल्ड्स मेक इट पर्टिकुलर नेम ऑफ द पेन, तो रेनॉल्ड्स एक प्रॉपर नाउन हो गया. प्रोनाउन इज द रिप्लेसिंग वर्ड टू रिप्लेस नाउन. Sarah laughed loudly at the joke. She really liked the joke. Here Sarah is a noun which is replaced by the pronoun she. अब हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इट हेल्प्स टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन. अगेन Sarah laughed loudly at the joke. Sarah liked the joke very much. हम बार बार Sarah का यूज कर रहे हैं, उसके नाम का यूज कर रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज किया. सेकेंड पॉइंट, इट मेक्स अ सेंटेंस ब्यूटिफुल. एंड थर्ड पॉइंट, इट मेक्स अ सेंटेंस शॉर्ट. अब प्रोनाउन 8 तरह के होते हैं जिसे हम कलेक्टिव वे में याद करेंगे. तो कैसे याद करेंगे? प्राइड वर्ड से, PRID, प्राइड. P stands for personal pronoun, R stands for reflexive, relative and reciprocal pronoun, I for indefinite and interrogative pronoun, and D stands for demonstrative and distributive pronoun. Personal pronouns are in the form of this table. Here we can see first person I and we. When used in subjective form, they are used as it is. But when they are used in objective form, they are we, me, and us, respectively, and so on. We will discuss pronoun in our future videos with details. Let's talk about adjective. Adjective is a qualifying word to qualify noun and pronoun. There are 3 types of adjectives which we are going to use in our topic subject-verb agreement. First, attributive adjective. Here, adjective is placed before noun. Example, beautiful eyes. Here, adjective is beautiful and noun is eyes. Then, predicative adjective. Here, the structure follows noun pronoun followed by a verb, then an adjective is placed. Let's take an example. Your eyes are beautiful. Here, eyes is are noun, are is verb, and beautiful is an adjective. इसके बाद आता है post positive adjective, where adjective is placed after noun. Something strange is happening. Here, something is a noun, strange is a
एडजेक्टिव। लेट्स टॉक अबाउट वर्ब्स। ये एक्शन या स्टेट वर्ड्स होते हैं जैसे कि ईट, ड्रिंक, स्लीप एक्सेट्रा। ये दो तरह के होते हैं, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम कई बार हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। इन्हें फर्दर 4 क्लासेस में बांटा गया है, प्राइमरी, मॉडल्स, सेमी मॉडल्स एंड मार्जिनल वर्ब्स। अब प्राइमरी वर्ब्स में कौन कौन से वर्ब्स आते हैं? सिर्फ 3 वर्ब्स आते हैं, बी, डू, हैव। अब बी की जितनी फॉर्म्स होती हैं वो प्राइमरी वर्ब्स यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह काम करेंगी। जैसे फॉर्म्स ऑफ बी क्या हुई? इज, एम, आर, वॉज, वर। उसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ डू। डू के कौन से फॉर्म्स काम करेंगे प्राइमरी वर्ब की तरह? डू, डज, डिड। फिर आता है हैव। फॉर्म्स ऑफ हैव होंगे हैज, हैव, हैड। अब बात करते हैं मॉडल्स की। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू। ये हैं हमारे मॉडल्स वर्ब। इसके बाद आते हैं सेमी मॉडल्स वर्ब्स। हैड बेटर, हैड सूनर, had rather, would better, would sooner, would rather। और इन सेमी मॉडल्स के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है, जैसे कि would rather run, would rather सेमी मॉडल, run is the first form of verb run। इसके बाद आता है मार्जिनल, used to, need not, dare not। अब बात करते हैं मेन वर्ब्स की। मेन वर्ब्स 8 टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, डायनेमिक, स्टेटिव, कॉजिटिव एंड लिंकिंग। आगे आगे जैसे हम मेन वर्ब्स का यूज करेंगे साथ ही इनके बारे में सीखते जाएंगे, तब तक आप अपने दिमाग में चिपका लीजिए कि ये हम 8 टाइप के मेन वर्ब्स को यूज करेंगे। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स को एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई एम अ डॉक्टर। हियर एम is an auxiliary verb as well as main verb. Why? Because there is no other verb in the sentence. Let's check another example. She is eating a mango. Here, is the auxiliary verb, whereas eating is the main verb. Why? Because it is the form of verb eat. इसके बाद बात करते हैं preposition की। Preposition क्या होते हैं? ये दो चीजों में रिलेशन शो करता है। इस एग्जाम्पल समझते हैं। बुक इज ऑन द टेबल। हियर ऑन इज द प्रपोजिशन। वो शो कर रहा है कि बुक का टेबल से क्या रिलेशन। बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है। ये दिखा रहा है, रिलेशन बता रहा है कि बुक टेबल के रिस्पेक्ट में कहां पर है। बुक इज अंडर द टेबल। यहां भी शो कर रहा है कि टेबल के रिस्पेक्ट में बुक कहां है। अब प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं तो प्रपोजिशन को कहीं भी यूज किया जा सकता है सेंटेंस में, इन द बिगनिंग, मिडल और एंड। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बिगनिंग का। राउंड द टेबल वॉज सिटिंग अ फ्यू बॉयज। हियर राउंड इज प्रपोजिशन एंड इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल एंड बॉयज। बॉयज और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है उसको शो कर रहा है राउंड की। एक टेबल के आसपास कुछ बच्चे बैठे, कुछ लड़के बैठे हुए हैं। अब हम लेते हैं मिडिल का एग्जाम्पल। मिस्टर हैप्पी इज टॉकिंग टू अ ब्यूटिफुल गर्ल। हियर to is the preposition which shows the relationship between Mr. Happy and the beautiful girl. Last but not the least, example of and. And में preposition कैसे लगता है? Leela offered me a chair to sit on. To sit on. यहाँ कई लोगों को लगेगा कि ये सेंटेंस तो ऑलरेडी ग्रामेटिकली ठीक है, Leela offered me a chair to sit, बट नहीं, ये टोटली ही गलत सेंटेंस है। Leela offered me a chair to sit। कैसे? हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर, हर सेंटेंस एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसमें स्ट्रक्चर जो है वो ये है, नाउन टू V1। चेयर हो गया नाउन टू प्रपोजिशन, V1 हो गया सिट। ठीक है, अब इसके बाद प्रपोजिशन लगनी है नहीं लगनी, इसको हम कैसे चेक करेंगे? इस स्ट्रक्चर को जरा से घुमाते हैं, एंड टू V1 को करते हैं टू V1 एंड। अब हो गया टू सिट चेयर। क्या आपको ये सही लग रहा है? टू सिट चेयर। अब आपको नहीं लग रहा है टू सिट चेयर के बीच में कुछ होना चाहिए? टू सिट ऑन चेयर। अब इस बात का कैसे पता करेंगे प्रपोजिशन लगनी है कि नहीं लगनी है? स्ट्रक्चर को घुमा के देखा हमने, टू सिट चेयर नहीं लगा, मीनिंगफुल नहीं है बिल्कुल। हमने क्या किया? ऑन प्रपोजिशन लगा दी। कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। माई फादर ऑफर्ड मी सम फूड टू ईट।
some food to eat. Some food हो गया नाउन, to V1 eat हो गया. अब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा घुमाते हैं, and to V1 से घुमाते हैं to V1 and. अब हो गया some food to eat से चेंज होके बना to eat some food. My father offered me to eat some food. सेंटेंस सही है. टू ईट फूड के बीच में कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ी. इसका मतलब है इसमें हमारी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा. इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि सेंटेंस में एंड में प्रपोजिशन लगनी है या नहीं लगनी है. क्या फॉर्म है? एंड टू V1 एंड. मीनिंगफुल विदाउट प्रपोजिशन, मीनिंगलेस नीड प्रपोजिशन. अब हम बात करते हैं कंजंक्शंस की. कंजंक्शंस क्या होते हैं? दो वर्ड्स को जो जोड़ता है या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो चीजों को जोड़ता है, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं. जैसे कि टू वर्ड्स को ए एंड बी, टू थिंग्स को लीला एज वेल एज शीला, टू सेंटेंसेस को लीला वर्क्स हार्ड, शी फेल्ड इन द एग्जाम. इसको जोड़ते हैं. लीला वर्क्स हार्ड येट शी फेल्ड इन द एग्जाम. हियर एज वेल एज एंड येट, ये कंजंक्शंस हैं. कंजंक्शंस के बाद आते हैं एडवर्ब. एडवर्ब भी क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं हर पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन. क्योंकि नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव होते हैं. एडवर्ब किसे किसे क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव, वर्ब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को करता है, प्रपोजिशन को करता है, इवन सेंटेंसेस को भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है. कुछ एग्जांपल लेते हैं. शी रन फास्ट. फास्ट इज, व्हाट इज फास्ट? एडजेक्टिव. वो तेज दौड़, वो दौड़ती है. शी रन्स वेरी फास्ट. वो बहुत तेज दौड़ती है. वो दौड़ने को भी जस्टिफाई, क्वालिफाई कर रहा है कि दौड़ कैसे रही है? तेज दौड़ रही है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ब्यूटीफुल विडो. वो विडो सुंदर है. वेरी ब्यूटीफुल विडो. वो विडो बहुत ही सुंदर है. या सुंदरता को भी बहुत से क्वालिफाई किया गया है. तो ये क्या हुआ? एडवर्ब. अब एडवर्ब को हम बना भी सकते हैं. कैसे? अगर एडजेक्टिव के पीछे ly जोड़ देते हैं तो वो एक एडवर्ब का काम करता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. स्लो. स्लो इज एडजेक्टिव. ly जोड़ दो, स्लोली. स्लोली इज अ एडवर्ब. फास्ट प्लस ली, ly, फास्टली. उसके बाद करते हैं, अगर किसी सेंटेंस आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाए जो बता रही हूं, इन प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद मैनर या तरीका, तो वो एक एडवर्ब का काम करेगा. शी बिहेव्स इन अ मैनली वे. इन अ मैनली वे, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एडवर्ब है. इसके बाद बात करते हैं, इसको हम डिटेल में और देखेंगे जब ये टॉपिक हम करेंगे एडवर्ब का. इसके बाद देखेंगे हम इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन सडन और इमोशनल स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं. जैसे आउच, फाई मीन्स छी, वाओ, ब्रावो, हुर्रे, ये सब इंटरजेक्शन होते हैं. सो वी सी कि ये सारे कंपोनेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले हर टॉपिक के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब हो, नाउन हो. क्योंकि हम पर्टिकुलर नाउन पढ़ेंगे, सिर्फ नाउन नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ हमारा एडजेक्टिव की सेंटेंस सिर्फ नाउन से कंप्लीट नहीं होता. सेंटेंस में बहुत सारी चीज कंपोनेंट्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, तो हम डे बाय डे उन्हें रोज रोज सीखेंगे. जब आएगा तब हम उसके बारे में कुछ नया जानेंगे. इफ यू लाइक माई इंफॉर्मेशन, प्लीज like it, subscribe my channel and press the bell icon so that you will get timely notification of all my new videos. Till then, bye.